Okay. Okay, everyone settle down. Yeah. So, can you tell me how many topics in that table have we discussed till now? और जो टेबल में से कितनी बातों को हमने सीखा? I'll wait कौन सी for बात है? others also to tell me. How many have we discussed? कितनी बातों को हमने उस टेबल जो देखा था उसमें से कितनी बातों को सीखा? Table देखिए. Look at the table. टेबल को देखिए, कितनी बातों को सीखा हमने? Only two. We've only looked at two topics. अभी हमने केवल 2 विषय पर ही चर्चा की है. So, church is, what is the first one? Church is body of Christ. What is the second one? Yeah, family of God. हमने पहला क्या देखा था? पहला कौन सा सीखा? कलीसिया की देह और परमेश्वर का परिवार. Okay. Great. So in the family we are talking about sons and parents. और हम उस परिवार में माता पिता और बेटों के बारे में देख रहे थे. And we said as sons and daughters we must be faithful to the family of the church. और एक आत्मिक बेटे और बेटियां होने के नाते हमें क्या करना? विश्वास योग्य होना है. Okay. So just because things are not great, okay, I'll leave and go. और No son behaves like that. कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है कि अगर कुछ ठीक ठाक नहीं हो तो छोड़ के चला जाए. Okay. And we also said as parents we have to respect the sons and daughters whom we are raising up in the Lord. और जो माता पिता की एक जिम्मेदारी है जो कलीसिया में किस प्रकार आत्मिक बच्चों को तैयार जब करते होते हैं तो उनका आदर सम्मान कैसा करना चाहिए. Okay. Are you all with me? आप लोग साथ में हैं? Have you understood? आपको समझ में आ गया होगा? Yes. हाँ. Okay. Great. So now let's continue. हम लगातार आगे बढ़ेंगे. I was talking about mentoring. और मैं आप लोग को जो मेंटरिंग के बारे में बता रही थी. Developing the sons and daughters. कैसे एक बेटे और बेटियों को बढ़ाना है. First is we must have a relationship with them. पहला जो है हम उनके साथ रिश्ता बनाने के द्वारा. See, if anybody comes and tells me do this, do that, I won't listen. अगर मान लीजिए सभी लोग से कहेंगे इस पर ये ऐसा करना वैसा करना, ऐसा वो हो नहीं सकता सबसे. If somebody knows me, I trust them, I will listen to them. अगर किसी बात को किसी ने मुझसे कहा है मैं उस पर विश्वास करूंगा, उसकी सुनूंगा और फिर मैं करूंगा. Okay, so I know many of us here, we are all very young. और बहुत से लोग यहाँ पर अभी बहुत ही युवा अवस्था में हैं. And you're thinking in your mind, what mentoring? Somebody has to mentor me. अरे क्या ये क्या सोच ऐसे आ रही है, ये क्या बात है कि मुझे मेंटरिंग कर रहे हैं, मुझे बढ़ा रहे हैं. Okay, but I remember when I was, your age in college, I had young people in my college. I used to do the best I know to train them. और जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी वहां पर भी मेरा एक अच्छा तरीका था लोगों को बढ़ाना सिखाना. So some of my juniors in college, we all used to come together for prayer. और मुझसे जो छोटे थे हम लोग वहां पर इकट्ठा होकर प्रार्थना को करते थे. So I used to try to spiritually equip them. और मैं प्रयास करती थी कि उनको आत्मिक तौर से किस प्रकार बढ़ाना है. Actually, I only didn't know much, but whatever I knew, I would try to teach them. मेरे को इतना अधिक तो मालूम नहीं था लेकिन मैं भी प्रयास करी उनको जो कुछ मेरे पास था उसको सिखाने के लिए. I'm sure each one of you at this age, I'm sure you can mentor people. और आपके इस उम्र में भी आप लोगों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं. So how can you do it? कैसे आप करेंगे? First thing is, if you have a good relationship with them, they will listen to you. अगर आपका अच्छा रिश्ता उनके साथ बनाए हैं तो वो आपकी सुनेंगे. Okay, and when we are mentoring people, don't just keep talking about their good things. Sometimes we have to address the issues in their behavior. कई बार हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, उनको समझना होगा और उनकी बातों को समझकर उनको सिखाने का प्रयास करना होगा. और हमारे जोर देने के द्वारा नहीं हो सकता है वो. Okay, we cannot ignore the weaknesses in them. उनके अंदर जो कमजोरी है उनको हम नकार तो नहीं सकते.
at a young age, sometimes we have to address those issues. If they correct themselves, it will help them their entire life. और हमें क्या करना होगा, हमें नकारना नहीं है, लेकिन उस बात को समझना होगा कि कमजोरी क्या है और उनको समझाना होगा ताकि वो उससे बाहर निकलकर अपने जीवन को बदल सके या बढ़ा सके। See, maybe the person that we are mentoring is very anointed but very lazy. कई बार हो सकता है वो जो मेंटरिंग करना उसको सिखाने वाला हो वो आत्मिक तो है, लेकिन वो कई बार देखते हैं उसके जीवन में आलसीपन भी आ जाता So, है। as a leader, we have to tell them, see, you have to change. और हम अगुवे होने के नाते या हम मेंटरिंग कर रहे हैं तो हमको इस बात को अगर देखा है बताना है कि ये स्वभाव ये आदतें बदलना है। If we don't do it, their whole life they will continue with the अगर same. आप इस प्रकार नहीं करेंगे वो जिंदगी भर उन कामों को अपने जीवन में करते रहेंगे। Okay, and we can also hold them accountable. और हमें क्या करना है, इस बात को पकड़े रहना है कि हमें उसका हिसाब देना है। Yeah, so we hold them accountable means from time to time we can ask them, how is your spiritual life? और इसका मतलब ये है कि समय समय पर उनसे पूछना होगा कि आपका आत्मिक जीवन कैसा है। We can ask them, are you able to spend time reading the word? और उनसे पूछना होगा क्या आप अपने समय को दे रहे हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। We can hold them accountable for their lifestyle. उनके जो जीवन शैली में। Okay, so if we are observing something that they're not doing according to the word of God, we can always tell them. हो सकता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार तो कर तो नहीं रहे होंगे, लेकिन हमें उन्हें हमेशा स्मरण दिलाना होगा, याद दिलाना होगा। See, it's very helpful when somebody is asking you, how is your spiritual life? और कई बार बड़ा मुश्किल होता है कि उसके आत्मिक जीवन के बारे में पूछने के लिए। I remember there are, people who have asked me, how is your spiritual walk with the Lord? और मेरे जीवन में मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग थे जो मेरे बारे में पूछते थे कि तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा है करके। They used to, like check, is she doing well? Is she doing okay? Do you need to meet with me? Do you need to talk with me? And I'm so grateful to them. और वो मेरे जीवन में इस बात को देखते थे कि क्या बात करने में सही है, सही कामों कर रहे हैं, तो वो कई बार इस बात को अब जांचने का प्रयास करते थे वो। So now I do that for, many young people. अभी मैं बहुत से ऐसे युवा लोग के लिए, जवानों के लिए मैं काम करती हूँ। So when we meet them, we ask them, hey, how are you doing spiritually? और मैं जब वो मिलते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका आत्मिक जीवन कैसा है। So if there is some challenge issue, we sit, we talk, we pray. अगर कोई चुनौती की बात होती है तो उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं और उनके साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करते So हैं। we are journeying with them. हम क्या करते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं उनको बढ़ाने के लिए Okay, and प्रतिदिन। it really helps people. और ये सचमुच मदद करती है उन लोगों के लिए। When we are training people, we must not always focus on their gifting, but we must focus on their character. और जब We must not focus only on their gifting, we should focus on their हम character. जब उनके साथ बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, केवल हम उनके वरदानों को ना देखें, लेकिन उनके जीवन में उनके व्यवहार चरित्र को देखें वो कैसे हैं। See, we can preach mighty under the anointing. और हो सकता है हम बड़े आत्मिक अभिषेक के साथ हम बड़े संदेश को या प्रचार कर वचन को सुना सकते हैं। But our character is reflected when we are off pulpit. और वो दिखाई, हमारा चरित्र व्यवहार मंच से दिखाई पड़ता है कि सही है क्या। If I'm a true mentor, I will help to develop the character of the person first, and then of course their gifting. अगर मैं सही सिखाने वाला व्यक्ति हूँ तो वो दिखाई देता मेरे आचरण के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा कि मैं सही रीति से लोगों को सिखा रहा हूँ, लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ उनको बढ़ने के लिए। If we are a true spiritual mentor, we will push the people to the next level. अगर हम एक सही आत्मिक लोगों को सिखाने वाले, समझाने वाले व्यक्ति हैं तो हम क्या करते हैं, उन सत्य बातों को हमारे जीवन से, हम हमारे व्यवहार के द्वारा हम दिखाते हैं। And we will make the person grow. और हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को बढ़ने के लिए मदद करते हैं। We will help them to come to the fullness of their calling. और हम उस व्यक्ति को इतना बढ़ाते हैं ताकि उस परिस्थिति में, उस स्थिति में आ जाए ताकि उसकी बुलाहट को समझ सके। We don't become jealous. और हम उसके लिए जलन नहीं करना चाहिए। Think about Saul and David. और दाऊद और साउल के बारे में सोचे। When David was mighty in war,
Saul became insecure. और देखते हैं कि जब दाऊद युद्ध के मैदान में बहुत ही प्रभावशाली और सामर्थ्यशाली था, साउल अपने आप में असुरक्षित महसूस किया He felt that everybody is praising David. और वो उसके कानों में ये बात गूंजने लगी कि हर एक जन दाऊद की प्रशंसा कर रहे हैं। When we mentor people, it's possible that those people will go much ahead of you. हो सकता है कि आप लोगों की अच्छी रीति से मदद कर रहे हैं, उनको सिखाने में, बढ़ाने में, तो हो सकता है दूसरे लोग आपसे दूरियां बनाने का प्रयास करेंगे, हटने का प्रयास करेंगे। The person that we are developing becomes greater than us in ministry. और हमारी सेवकाई में इस बात को याद रखना, हमसे बढ़कर एक है, हम उसके द्वारा हम सेवा को कर रहे हैं, उनके लोगों की मदद कर रहे हैं। So if those young people become better than us in the ministry, हो सकता है सेवकाई में हमसे अच्छे युवा लोग होंगे, हमसे अच्छी सेवा करने के लिए, so if they become better than us, we should be happy for them. और हमसे अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें खुशी को जाहिर करना जरूरी है। Help when mentoring, help people to chase after God's destiny for their lives. और हम उनकी मदद करते हैं ताकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम मदद कर रहे हैं ताकि उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर सके। Now that young person may develop themselves to an extent that one day you may have to let them go. और You may have to let them go. हाँ, और हम क्या करते हैं कि हम उसको आगे बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। Right? So imagine there is a young person, you have developed them, they've grown up in your church. अगर हो सकता, अब मान उदाहरण के लिए आपके चर्च में एक व्यक्ति को आपने बढ़ाया और वो बढ़ रहा है कलीसिया में, Okay, and they've become very mighty in ministry. और जो सेवा में बहुत ही उसके पास बहुत ही आचरण से भरा हुआ और वरदानों से परिपूर्ण है। And God tells you, okay, allow him to go. Let him plant his own church. परमेश्वर आपसे कहता है कि उसे आदेश दो या उससे कहो कि जाकर दूसरी कलीसिया की स्थापना करे। See, for every pastor, it's very difficult. सारे पासवानों के साथ बहुत कठिनाई होती है इस बात के लिए, We don't feel like letting go of our sons and daughters. और इस बात को समझ नहीं पाते या सोचते नहीं कि उनके जो बेटे और बेटियां उस सेवकाई में आगे बढ़े, We don't allow them to leave the church, is what I और mean. हम उनको अनुमति नहीं देते कि हमारे कलीसिया को छोड़ के दूसरी जगह जाए। But when we are a true father, we must be happy for them and say, okay, go. Wherever God is calling you, go. Do the work. अगर एक सच्चा आत्मिक पिता है तो पिता होने के नाते उन बच्चों को, उन बेटे बेटियों को हम अनुमति देते हैं कार्य करने के लिए, बाहर जाने के लिए। So some people whom we develop in the spiritual walk may leave the church. The people whom we develop, they may leave the church. और जो लोग बढ़ोतरी को पा लेते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये बात आती है और वो व्यक्ति चर्च को बढ़ाने के लिए वो परिपक्व हो जाता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। Yes. So as a pastor, we should bless them and release them. और एक पासवान होने के नाते उसको आशीषित करे और प्रार्थना के साथ उसे इस कार्य के लिए भेजे। Okay. So have you understood about the attitude of a son and a daughter? अब आपको व्यवहार के बारे में समझ में आ गया, एक बेटे और बेटी होने के नाते, आत्मिक बेटे होने के नाते। Have we understood about a spiritual father? आपने इस बात को समझा होगा एक आत्मिक पिता कैसा होना And चाहिए, we've also understood the process of developing a spiritual son and daughter. और एक आत्मिक बेटे और बेटी को बढ़ने का तरीका को भी आपने समझा होगा कि So, कैसा होना चाहिए। Being a father and mother is not about, age. और ये वो नहीं, वहां पर उम्र का अंतर नहीं है, वहां पर वो चाहे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है उम्र So में। even a young person who's spiritually mature can, become a leader or somebody like a father. और एक युवा व्यक्ति परिपक्व है उस बातों के लिए ताकि दूसरों को परिपक्वता में आगे बढ़ाने के लिए वो सक्षम हो सके। Okay. So now let's move on to community. अब हम जाएंगे समाज में। About Christian community. हम मसीह समाज में देखेंगे। We need, now that we are saying that the church is a family, अभी हमने कहा कि कलीसिया एक परिवार है, it should become a community. और वो एक समाज के रूप में भी है। So believers get together as one community. और
one community. और मसीह है जो मसीह जो है एक समाज के रूप में इकट्ठा होना है। So Christians can come together and also become a social club. और मान लीजिए एक मसीह होने के नाते एक सामाजिक विकास करने का सामाजिक स्थान है। So see, when believers come together, they can either behave like a Christian group or they can behave like the world. अगर मान लीजिए वो समाज में पाया जाता है एक मसीह, तो उसको क्या करना, या तो फिर उस संसार के व्यवहार को वहां पर प्रकट करे या फिर एक मसीह जीवन का व्यवहार को प्रकट करे। So a group of Christians, we can either behave like Christians or non-Christians. और हमें उस व्यवहार को व्यतीत करना है, ना कि एक जो सांसारिक व्यक्ति साधारण व्यक्ति बनकर जो जीवन व्यतीत करता है। So what is a Christian community? इसका मतलब मसीह समाज क्या है? What is a true Christian community? एक सच्चा मसीह समाज क्या है? Christ has to be the center of that community. और मसीह वो जो उस समाज का केंद्र बिंदु है। So in that community, people must encourage each other to grow spiritually. अगर मसीह समाज में वो व्यक्ति वहां पर है, एक दूसरे को आत्मिक बातों के लिए प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। Okay, people must encourage one another to develop Christ-like attitude. एक दूसरे को आत्मिक उन्नति के लिए जोर देना है, जो कि मसीह का स्वभाव है। There has to be a character of Christ with love, compassion, kindness. और जिस प्रकार मसीह का दया का भावना और करुणा की भावना है, उसी प्रकार मसीह के चरित्र का निर्माण समाज को करना है। So that kind of a community will be able to make an impact. और वो समाज देखते हैं कि एक परिपक्व होते हैं और बढ़ने व्यवहार को संसार के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। So the reason why we are talking about this is because sometimes we call ourselves a Christian group. ये बातें क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? कई बार हम कहते हैं कि एक मसीह समूह के बारे में, मसीह समूह है करके हम कहते हैं। But our behavior does not reflect like we are a Christian group. और मसीह समाज के अंदर, मसीह समूह में कई बार हमारे व्यवहार उस प्रकार नहीं होते और व्यवहार को नहीं करते। So in the early church, when they were a Christian community, जब वो पहली शताब्दी में हम देखते हैं जो विश्वासी थे मसीह समाज कहलाते थे, they were ready to even share their things to bless people. और क्या करते, वो अपनी चीजों को क्या करते थे, एक दूसरे के साथ साझा की करते थे, एक दूसरे को देते थे, बांटते थे। They used to meet house to house to pray, to share communion. और घर घर वो इकट्ठा होते थे और रोटी को तोड़ते थे वो। So whenever they come together, there were many miracles that took place. और जब वो इकट्ठा होते थे, बहुत से आश्चर्य कर्मों को वहां पर हम देखने पाते हैं। Now we also gather in our Christian groups. जब हम मसीह समूह में जब इकट्ठा होते हैं, Do the same things take place like the early church? और जो पहली शताब्दी में जो कलीसिया में जो हुआ, और वही काम हो सकता है। So in today's world, sometimes even if we are a group of believers, हो सकता है हम मान लीजिए इस संसार में हम एक समूह के रूप में पाए जाते हैं। okay, but as Christians, maybe we just come together, we watch some bad movie. और जब इकट्ठा होते हैं, हो सकता है कि बुरे पिक्चरों को देखना। We're all Christians, मसीह तो है, and we are saying, oh, we are Christian, we are a Christian community. फिर हम कहते हैं कि हम मसीह है, मसीह समाज हमारा है। But what is our attitude and behavior as a Christian group? तो हमारा आचरण और व्यवहार क्या है जब हम समूह में इकट्ठा होते हैं? It's not Christ-like. मसीह के समान नहीं है। So then how can we call ourselves Christian community? कैसे हम मसीह समाज कहने पाते हैं? Right? So Christian community should reflect Christ-likeness. Then we can say we are a Christian community. मसीह समाज होने के नाते हमें मसीह के स्वभाव का प्रकाश या प्रभाव को डालना होगा, तभी हम मसीह समाज कह सकते हैं। Okay, so we must be careful to reflect Christ as believers. और हमें बड़ा सतर्क होना है। अब विश्वासी अगर कहते हैं मसीह होने के लिए, See, God wants his house to be holy. परमेश्वर चाहता है उसका घर पवित्र रहे। So we are the house of God. क्योंकि मैं और आप
मसीह के घर हैं, We are the family of God. हम मसीह के परिवार के घर हैं, We can expect the Holy Spirit to correct us and clean his house. और वो हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उस घर को शुद्ध करे, साफ करे। We should not make God angry. We should not make God angry. हम नहीं, हमारे ओर से ये नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर हम पर क्रोध करे। So when we ourselves are ready to change, it's better. और हमें क्या करना, अपने आप में बदलने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। So we have seen that the church is a family. हमने देखा कि चर्च जो कलीसिया है परमेश्वर का घराना है। So we have to develop our church community with that mentality as a family. उस मानसिकता के अनुसार मसीह समाज को हमें बनाना है, बरकरार रखना है, परिवार के समान। We must also help people to get develop a son mentality. और हम और दूसरों के अंदर सोच को बढ़ाना है कि वो एक बेटे, उसके पुत्र और पुत्रिया के रूप में। We must encourage people to grow up and become fathers and mothers. और उन्हें हमें बढ़ाना है कि एक माता पिता होने के लिए, आत्मिक माता पिता होने के लिए, And develop a true Christian community. और एक सच्ची मसीह समूह या समाज होने के लिए। Okay, and sometimes God may call us as a community for a specific ministry. और कई बार परमेश्वर हमें मसीह समाज में विशेष काम के लिए परमेश्वर हमको बुलाता है। Okay, so yeah, I think we've all understood the point. मैं समझती हूँ कि आपने इस बिंदु को समझ लिए होंगे। So the way we do church, we must help people feel like they are part of a family. और जब हम लोग की सेवा करते हैं, लोग इस बात को समझना है कि हम भी परिवार के सदस्य हैं या उसके भागी हैं। So, we can implement things like cell groups, member care and all that, so that people will feel like, okay, I'm part of a family, not a crowd. हाँ, उनको हमें इस बात को महसूस कराना या महसूस करना है कि एक भीड़ नहीं है, बल्कि कुछ उनको सदस्यता के रूप में उनको जोड़ना और भी दूसरे कामों करने के द्वारा उनको इस बात का एहसास दिलाना कि हम मसीह समाज के अंदर है, भीड़ में नहीं है। Okay, now the third thing about the blueprint. तीसरा जो रूपरेखा जो है, First we said that the church is the body of Christ. और पहला हमने देखा कलीसिया जो परमेश्वर की देह है। Second we said the church is the family of God. और दूसरा हम देखा हमने कलीसिया मसीह के परिवार से या उसके घराने के हैं। The third one is the church is the pillar of truth. और तीसरा हम देखते हैं कि स्थानीय जो कलीसिया है सत्य का स्तंभ है। In 1 Timothy 3 verse 15, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15 पद हम देखते हैं। Paul calls the church as the church of the living God, the pillar and ground of truth. और यहाँ पर इस पत्र में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर कलीसिया है, जो सत्य का खंबा और नींव है। Okay, so the church has the truth. कलीसिया सत्य है, The word is the truth of God. और जो वचन है परमेश्वर का सत्य वचन है। We must not be ashamed of the truth of God's word. हम परमेश्वर के वचन, सत्य वचन के लिए शर्माना नहीं है। We must be committed to the word of God. हमें परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित होना है। So the world may have different standards, but we have to align to the truth of और God. संसार, हम देखते हैं संसार में संसार अपनी स्थिति में अपने कार्य के अनुसार खड़ा है, लेकिन हम जब संसार में पा जाते हैं कलीसिया होने के नाते समाज में या संसार के अंदर बड़े वचन के आधार पर हमें खड़े होना है। So the world should look to the church for the truth. और संसार कलीसिया को देखना है सत्य बातों को। For example, marriage has many definitions in the world. आज संसार में जो विवाह है उसकी कई परिभाषाएं हैं, But the church has the truth of God's word about marriage. और कलीसिया जो विवाह की जो बात, सत्य विवाह के बारे में, सत्य विवाह को प्रकट करता है। So what we are understanding is that the church has the standards of God. इसका मतलब यह है कि कलीसिया परमेश्वर के स्थान में एक बुनियादी स्तंभ के रूप में है। Yes. So that is why it is called as the pillar of truth.
इसलिए कहा जाता है उस कलीसिया को सत्य का स्तंभ। We have to raise up people who will stand for the truth. और हमें ऐसे लोगों को तैयार करना है जो सत्य के लिए खड़े हो सके। There can be many people who preach wrong things, but we still have to preach the truth. कई लोग गलत बातों का प्रचार करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें सत्य की बातों को बोलना, सत्य पर खड़े रहना। Remember yesterday I said if we share motivational messages and all that, many people will come, but that is compromise. कई लोग प्रोत्साहन के बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और लोग इकट्ठा होते हैं उसको सुनने के लिए। But we have to stand for proclaiming the truth. हमें सत्य की बातों को घोषणा करने के लिए खड़े होना है। It may not be entertaining, वो केवल मजा करने के लिए नहीं, but it is the word that can change their life. तो हमें उस वचन को बोलना है, बताना है, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन हो सके। And because the church is the pillar of truth, the church should have answers for the issues in the world. और स्थानीय कलीसिया के होने के नाते वो सत्य का खंबा है और वो लोगों के लिए प्रति उत्तर है। Right? So there are so many issues. बहुत सारी चुनौतियां, समस्या हैं। Sometimes the church is quiet, कई बार कलीसिया शांत हो जाती है, right? But the church can address the issues that the world is facing. और कलीसिया इस बात के लिए आगे खड़ा होना है ताकि वो क्या कर सके, उन समस्याओं का समाधान कर सके, समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ सके। And the church has to bring out the truth clearly. और कलीसिया की जिम्मेदारी है सत्य को सही रीति से प्रस्तुत करना। In 1 Corinthians 14 and verse 8, पहला कुरिन्थियों उसका 14 उसका 8 पद में, for if the trumpet makes an uncertain sound, यदि तुरही का शब्द साफ ना हो, who will prepare for battle? कौन लड़ाई के लिए तैयार होगा? So the siren has to be clear. That's when people will understand. और इसका मतलब यह है कि वो शब्द एकदम साफ होना चाहिए ताकि लोग उसको समझ सके। So even the church can set clear standards so that the world understands. और कलीसिया को भी स्पष्ट रीति से, सत्य रीति से खड़ा होना होगा ताकि संसार उसको देखे और उसको समझे। So now that we've understood that the church is the pillar of truth, how to apply it? और कलीसिया सत्य का स्तंभ है, तो उसे कैसे लेके अपने कार्य में लेके आना होगा। We have to proclaim the truth uncompromisingly. बिना समझौते के वो सत्य के वचन का घोषणा करना। We have to address real life issues. और सही जीवन को प्रस्तुत करना। Okay, so I think was it last year or the year before, we had a sermon series where we spoke about things like abortion, things like IVF. There are many things that the church does. Many times we don't hear it from the pulpit. पिछले समय में शायद याद नहीं है सही, पिछले समय में हम लोग ने एक जो परमेश्वर के वचन से विषयों को लेकर सिखाने के लिए हमने प्रयास किया, जिसमें गर्भपात करना और भी ऐसे बहुत से बातें हैं जो कि कलीसिया में या चर्च में मंच से प्रचार नहीं किया जाता उस विषय पर। Okay, so what does the Bible have to say about it? बाइबल इस बात को क्या बताती है? People are asking. लोग पूछते हैं। And we as the church have to clearly proclaim what the word says. तो हमें स्पष्ट रीति से लोगों को हम बताना है, वो कलीसिया की जिम्मेदारी है। There are a lot of young people that are asking questions about LGBTQ. और बहुत से युवा लोग LGBTQ के बारे में बात करते हैं। But sometimes the church is silent. कई बार चर्च शांत हो जाती है, बोलते नहीं इस विषय पर। So people don't know where to get the answers. और लोग सोचते हैं कि ये उत्तर हमें कहाँ से मिलेगा। But we have the answers in God's word. हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो वचन में उत्तर पा जाता है और हम वो लोग हैं। When we clearly share the truth, अगर सच्चाई को स्पष्ट रीति से जब बताते हैं, then people can find help. तो लोग सहायता को महसूस करते हैं। Young people are asking questions about homosexuality. और बहुत से जवान लोग होमोसेक्स के बारे में पूछते, उनके पास प्रश्न है। Sometimes the church is quiet. कई बार चर्च इस बात को बताते नहीं, शांत But रहती the है। church is the ground and pillar of truth. और कलीसिया वो स्थान है, वो सत्य का स्तंभ है
सत्य को बताने के लिए। To whatever revelation is available, we have to clearly teach people. जो कुछ प्रकाशन हमें मिला है, हमें सही रीति से लोगों को सिखाने की आवश्यकता है। People asking questions about divorce, और लोग पूछते हैं तलाक के बारे में, but sometimes there's no clear message from the pulpit. कई बार मंच से कलीसिया में वो स्पष्ट नहीं होता संदेश। Okay, so these are all difficult subjects, और ये बहुत ही कठिन विषय है, but they are relevant. We have to help people from the world. और ये बातें बहुत जरूरी है और ये लोगों की मदद करती है। Okay, so as the church, we can proclaim the truth about these difficult issues. और कलीसिया की जिम्मेदारी है जो लोग समस्या में होकर चल रहे हैं उनको बताना, उनको समझाना। But it's hard work. We have to study the Bible correctly to bring the लेकिन answers. ये एक कठिन परिश्रम है, लेकिन उसको क्या करना होगा, वचन को अच्छी रीति से समझना होगा, उसको ध्यान करना होगा और पढ़ना होगा। So this is the meaning of the church being the pillar of truth. और ये इसका अर्थ ये है, कलीसिया एक सत्य का स्तंभ है। The world has to look to us to learn. और लोग हमें देखते हैं और हमारे द्वारा सीखते हैं। Okay, so the next chapter is about being an army. और अगला जो विषय है, एक स्थानीय जो कलीसिया एक सेना है। So we have seen that the same church is the body of Christ, the house of God. It is the pillar of truth. It's also the army. अभी हमने देखा कि एक कलीसिया, स्थानीय कलीसिया मसीह की देह है, और उसके बाद हमने देखा परिवार है, उसके बाद हमने देखा एक सत्य स्तंभ है। अब हम देखते हैं वो एक सेना के समान है। Okay, so all of us are soldiers. हम सब सैनिक हैं। So when we are preparing the church, we have to train them in such a way as if we are training और जब हम soldiers. कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं, हमें उस रीति से लोगों को तैयार करना होगा उस काम के लिए। So Paul talks about fighting a good fight, और पौलुस एक अच्छी लड़ाई के बारे में बताता है, a good fight of faith. और अच्छी लड़ाई जो विश्वास के बारे में। So when we are preparing people, we have to help them develop, like soldiers. और हम जब लोगों को तैयार करते हैं बढ़ने के लिए, हमें एक सेना के रूप में, एक सैनिक के रूप में उन्हें तैयार करना है। In believers' authority, we have learned that Satan is our enemy. और हमने विश्वासी होने के नाते हम सीखते हैं कि शैतान हमारा विरोधी है। And Ephesians 4:27 says, "Do not give place to the devil." और इफिसी की पत्री 4 अध्याय, उसमें हम देखते हैं कि शैतान को अवसर ना देना करके। Okay, so we can teach believers about their spiritual authority. और विश्वासी को हमें सिखाना है आत्मिक अधिकार के बारे में, We can teach them about spiritual warfare. और आत्मिक युद्ध के बारे में सिखाना है। So when the believer is prepared like a soldier, जब वो एक फौजी के समान अपने आप को तैयार करता है, he can take his spiritual weapons. और क्या करेगा, वो तैयार हो जाएगा आत्मिक हथियार को लेकर इस्तेमाल करने के लिए। If you remember, we said that God has given us spiritual weapons to tear down the kingdom of the enemy. और हमने पढ़ा है, इस बात को याद करते हैं कि परमेश्वर हमें वो आत्मिक हथियार को देता है जिसके द्वारा अंधकार की शक्ति को गिराने के लिए, उसको विफल करने के लिए। Those weapons are the name of Jesus, the word of God, और वो जो हथियार है यीशु का नाम और परमेश्वर का वचन, the blood of Jesus, यीशु का लहू, our understanding as our identity in Christ, और हमें मसीह की पहचान को समझना है। full armor of God that God has given us, परमेश्वर ने जो हमें जो पूरा हथियार दिया है उसके बारे में, and helped us to fight the enemy with prayer and intercession. और हमें मदद मिलती है मध्यस्थता की प्रार्थना करने के द्वारा। So you see, it's not just the pastor and the leaders who will battle, और ये इस बात को ना समझे केवल ये पास्टर और एक सेवक की जिम्मेदारी है, that they are not the only ones who have to engage in warfare. केवल वही लोग ही उसी में सहभागी हैं उस आत्मिक युद्ध के मैदान में। Every believer can fight the spiritual लेकिन war. हर एक विश्वासी उस आत्मिक युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए पाए जाते So हैं। we as pastors, we have to train the people to understand that they have authority. हम पासबान होने के नाते इन अधिकारी को अधिकार को हमें सिखाने की आवश्यकता है, And the believers should understand that they have been anointed for battle. और विश्वासी इस बात को समझना है कि हम उसके लिए अभिषेक किए गए हैं।
all the believers should have an attitude that we will go out and we will damage the kingdom और of इस Satan. विश्वासी इस बात को समझना है कि हमें बाहर निकलना है शैतान की शक्ति के ऊपर कार्य करने के You लिए। know, whether the believer is praising and worshiping, और विश्वासी लोग वो परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा कर रहे हैं तो, or the believer is praying, और विश्वासी अगर प्रार्थना कर रहा है, or the believer is working in the workplace, he must understand that he is destroying the works of the enemy. और जिस भी स्थान में काम कर रहे हैं तो इस बात को वो समझना है कि हम शैतान के कामों को विफल कर रहे You know, हैं। sometimes when we see the wicked works of Satan, और शैतान के ऐसे क्रूरता के काम को जो हम देखते हैं, we must get some spiritual anger. और हमारे अंदर आत्मिक क्रोध आना You चाहिए। know, we read every day, we read the newspaper, we see the news, और हम हर दिन समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, न्यूज समाचार को देखते हैं, we read about corruption, crime, वहां पर देखते हैं कि वहां पर घूसखोरी और वहां पर क्राइम को देखते हैं, we read about cheating, killing. और वहां पर देखे धोखेबाज को धोखा देने वाली बातों को देखते हैं, हत्याओं को बारे में सुनते हैं। Right. But we as believers must become angry in the spirit. और हम विश्वासी होने के नाते आत्मिकता में क्रोध हमें दिखाना है। And God may call us, God may say, okay, you come, you change this corruption. और तब परमेश्वर हमें कहेगा, हाँ ठीक है, तुम इस स्थान में आकर इस बात को बदलना So है, you come and you change this crime. और तुम इस स्थान में आकर इस घटनाओं को, इस जो क्राइम को बदलना है। So we as believers must have the confidence that God can use us to destroy the works of the और devil. हमारे अंदर इतना प्रभाव या उत्साह को लेके आना है कि हाँ, मैं उस काम को कर सकता हूँ, बदल सकती हूँ। So as a pastor, we have to help our people get that understanding. और पासवान होने के नाते इस बात को लोग समझना है और हमें समझाना है। So when the people have this understanding, yes, I will go out, I will destroy the works of और the enemy, लोग- we have done the job. लोग correctly. उसे समझना है कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है, उस काम को करने के लिए, शैतान के काम को नष्ट करने के लिए। But you know, the way the army works is quite different. हम देखते हैं फौजी या सेना को, वो अलग तरीके से अपने काम को करते हैं। Yes, they have weapons, उनके पास हथियार होते they हैं are ready for battle. और वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। But here are a few more things that they take care of. और वो कुछ बातों को क्या करते हैं, वो लेते हैं, ध्यान रखते हैं। They keep rank and order. Rank, they have rank. हाँ, so- उनके जो पद होते हैं उसको संभाले रखते हैं, So they respect that. और वो उनका क्या करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। So in the same way, we can honor leadership, we can do things in the right way. और हमें भी एक आत्मिक मैदान में जब पाए जाते हैं, हमें क्या करना है, इसी रीति से जिस प्रकार सेना में पद का सम्मान होता है, उसी प्रकार हमें भी उस बात को समझना है हमारे सेवकाई में। Soldiers in the army, they are very alert. और जो फौजी होते हैं, सेना में होते हैं, वो बहुत सतर्क होते हैं। We are the army of God. और हम लोग मसीह की सेना है। So how should we be? हमको कैसा होना है, We have to be alert. हमें भी सतर्क रहना है। We have to be alert to identify the works of the devil. हमें सतर्क रहना है और पहचानना है शैतान के कामों को। And when we identify it, we have to destroy it. और जब हम पहचान लेते हैं, उसके कामों को नष्ट करना है। An army always has a strategy. और हमेशा सेना के पास तरीका होता है, योजना होती है, Okay, so the army has some goal in mind. और उनके मन में एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य को तैयार करते हो। So even though the army moves very fast, और जब सेना बड़े तेजी के साथ जब आगे बढ़ता है, they don't leave behind their wounded. और उनको भूल नहीं जाते जो चोटिल हुए हैं। Okay, so how can we apply this concept that we are the army of God? कैसे हम अपने जीवन के अंदर इसको लागू कर पाते हैं कि हम भी सेना में, मसीह की सेना है करके। We have to exercise our spiritual authority. हम अपने जीवन में आत्मिक अधिकारों को प्रयोग में लेके आना है। We've learned so much about spiritual warfare, हमने बहुत से आत्मिक युद्ध के बारे में सीखा, and we must apply that. हम अपने जीवन में लागू करना है। Okay, so today we have looked at 4 pictures. हमने 4 दृश्य को हमने देखा।
So how many more are left? कितने और रह गए हैं? 6. 6 रह गए हैं। Okay, so we will go ahead and do those tomorrow. और हम आगे बढ़ेंगे, कल के दिन देखने पाएंगे। I know there's a lot that I'm sharing in a short time, और मैं कम समय में बहुत कुछ आपको बता रही हूँ, right? But if you are listening carefully, it will help you. अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। Okay, so till now there have been no questions, और अभी तक कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। but tomorrow I'm hoping there should be some मैं questions. विश्वास करती हूँ कुछ ना कुछ प्रश्न कल के दिन होगा। All right, so with that we will stop for today. और इसके साथ आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। And I want to request one of us to pray and close. और हम में से कोई एक जन प्रार्थना करें और आज की इस क्लास को समाप्त करेंगे। ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ ತಂದೆ. ಯೇಸುರಾಜನೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಯೇಸುರಾಜನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಕಲಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಯೇಸುರಾಜನೇ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು. ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಪ್ಪ ತಂದೆ. ಯೇಸುರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದಯ ತೋರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ತಂದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬೇಡುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್. Amen. Amen. Thank you. Thank you, everyone. God bless you. बहुत बहुत धन्यवाद।